Hello students, so today we are going to start with your semester 8 cosmetic science का unit 1. Along with this, after the syllabus explanation, I'll start with my note sharing. Okay. So unit number 1 is all about classification of cosmetics. जिसमें हम cosmetics के बारे में पढ़ेंगे. Cosmetics होता क्या है, cosmeceutical products क्या होते हैं. According to our pharmaceutics, what is cosmetics? According to pharmacy, what all comes under cosmetics? What is the definition of cosmetics as per Indian and EU regulations? Evolution of cosmeceuticals from cosmetics, and what is cosmetics and what is cosmeceuticals? Both are different. तो दोनों के बीच में क्या difference है वो हम पढ़ेंगे. Cosmetics as cosi drugs क्या होता है and OTC drugs क्या होता है. Now cosmetic, you will say the cosmetic, how can cosmetic come under pharmaceuticals? Because cosmetic and pharmaceuticals is not different. मतलब cosmetics अलग है, pharmaceuticals अलग है, but कॉसी ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स को के मिक्सचर से बनती है. वो क्या है वो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर. सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विथ यूनिट 1.1 कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स. The definition of cosmetic as per Indian regulation is as per section 3AA of Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945. Cosmetic means any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applicated to human body. मतलब as per this act, ये act का नाम याद रखना, section 3AA, it is very important. और ये definition as it is तुम्हें लिखना पड़ेगा जैसा वो act में mention है. You can't put it in your own words. जैसे mention है वैसे ही लिखना पड़ेगा. So as per this section 3AA of Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945. Remember this 1940 and 1945. Act 1940 and Rules 1945. कॉस्मेटिक मीन्स, कॉस्मेटिक का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको या तो रब किया जाए या तो पोर किया जाए. जैसे क्रीम्स को रब करते हैं, पाउडर को पोर स्प्रिंकल करते हैं, या किसी चीज को पोर किया जाए या तो स्प्रे किया जाए, जैसे रिमूव स्प्रे ले लो, और इंट्रोड्यूस इनटू और अदरवाइज एप्लीकेट, या तो हम इंट्रोड्यूस करें बॉडी के अंदर या तो बॉडी के ऊपर लगाए. ऐसी कोई भी चीज जिसका बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर इंकलकेट की जाए, और एनी पार्ट thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness. तो कोई भी ऐसी चीज जो क्लींस करने के लिए यूज हो, ब्यूटिफाई करने के लिए यूज हो, एंड प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस है तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए यूज हो, तो ऐसी चीज को बोला जाता है जो altering the appearance and include any article intended for use as a component of cosmetic. मतलब जो appearance को change कर दे, जो जैसे दिखता है पर्सन, वो पर्सन के फेस को चेंज कर दे, वो चीज को बोलते हैं कॉस्मेटिक्स. हमेशा मेकअप लगाने के बाद डिफरेंट दिखते हैं, मेकअप के पहले डिफरेंट दिखते हैं. डिफरेंट मतलब नॉट कंप्लीटली चेंजिंग द फेस, बट इट्स चेंजिंग द अपीयरेंस, how we look, it changes our look. Okay, so definition as per the EU regulations. ये दो definition. First definition is as per the Indian regulation, and the second definition is per the European Society regulation, so which is EU regulations. So according to it, the definition is a cosmetic product is any substance or mixture intended to be placed in contact with external parts of human body or with the teeth and mucous membrane of the oral cavity, with view exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, changing their appearance, protecting them, keeping them in good condition or correcting body odors. So मतलब एक cosmetic product ऐसी चीज है जो एक मिक्सचर है जिसको हम पार्ट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के कांटेक्ट में रखा जाता है, या तो टीथ में रखा जाता है या तो म्यूकस मेम्ब्रेन में रखा जाता है, ओरल कैविटी के अंदर रखा जाता है. मेनली उसका इंटेंशन होता है कॉस्मेटिक का कि हम क्लीन कर सके खुद को, परफ्यूम कर सके, एंड जिससे हमारी अपीयरेंस चेंज हो एंड हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो, जैसे कि सनस्क्रीन जिससे प्रोटेक्शन भी मिलता है, कीपिंग देम इन गुड कंडीशन, और लाइक वो स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, जो कंडीशन में उसको वैसे ही कंडीशन में रखे, और करेक्टिंग बॉडी ऑर्डर्स, या तो हम बॉडी ऑर्डर को, बॉडी की स्मेल को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. ओके,
So these are the two definitions. Now एग्जाम में तुम्हें कौन सा डेफिनेशन लिखना है? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मेंशन है इंडियन रेगुलेशन या ईयू रेगुलेशन, तो इस हिसाब से यू विल राइट द डेफिनेशन. बट इफ मेंशन नहीं है देन गो फॉर इंडियन रेगुलेशंस ओनली. ओके, ईयू लिखोगे बिकॉज इट इज नॉट कॉल्ड राइट, एंड मोस्टली इंडियन रेगुलेशन से ही क्वेश्चन पूछते हैं. ये एक्ट पे क्वेश्चन कॉस्मेटिक एक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डेफिनेशन पूछा जाता है. सो लर्न एंड बाय हार्ट दिस डेफिनेशन. ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्मेटिक्स? कॉस्मेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका KOSMETICOS विच इज कॉस्मेटिकॉस विच मीन्स एडॉर्न. एडॉर्न मतलब ब्यूटिफाई करना, अच्छा दिखना. ओके, ब्यूटिफिकेशन और इम्प्रूविंग द अपीयरेंस. कॉस्मेटिक्स का मतलब ही है ब्यूटिफिकेशन और इम्प्रूविंग द अपीयरेंस. मैन्युफैक्चरर्स कॉस्मेटिक्स को दो हिसाब से डिस्टिंग्विश करते हैं, एक है डेकोरेटिव कॉस्मेटिक्स और एक है केयर कॉस्मेटिक्स. ओके, डेकोरेटिव मतलब जो डेकोरेशन के लिए यूज हो, बॉडी को डेकोरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल लिपस्टिक. और केयर कॉस्मेटिक जो केयरिंग के लिए यूज हो, फॉर एग्जांपल लिप बाम. ना लिप बाम का काम डेकोरेट करना नहीं है, लिप बाम का काम है लिप्स को केयर करना, लिप्स की केयर करना, वाइल लिपस्टिक का काम है सिर्फ डेकोरेट करना. For example, another example, foundation. Foundation is decorative cosmetic, while sunscreen, which foundation? The sunscreen is the care cosmetic. Getting it? Now ये पूरा types of cosmetics है. If you guys want, I'll share the notes. Just comment me. तो मैं notes भी share कर दूंगी. This is my handmade notes. Okay. Now these are the types of cosmetics: facial cosmetic, hair cosmetic, eye cosmetic, dental and oral cosmetic, anti-perspirant and miscellaneous cosmetic. ये syllabus के हिसाब से ही मैंने किया है. ये सारी चीज तुम्हारे syllabus से stick है. ओके, फेशियल कॉस्मेटिक्स में क्या क्या आता है? क्लीनिंग प्रिपरेशन, स्किन नरिशिंग जैसे कि सनबर्न, सनस्क्रीन जो फेस पे अप्लाई हो, स्किन टोनिक, शेविंग क्रीम, मेकअप. मेकअप के अंदर में आता है फेस मास्क, वैनिशिंग क्रीम, पाउडर, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स. ओके, सो दीज आर दी फेशियल कॉस्मेटिक्स. हेयर कॉस्मेटिक में जो हेयर पे अप्लाई की जाए जैसे कि हेयर डाई, हेयर ऑयल, हेयर क्रीम, हेयर जेल्स, एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशंस. एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशंस, हेयर रिमूविंग क्रीम्स. ओके, हेयर रिमूविंग क्रीम्स ऑब्वियसली हेयर पे अप्लाई नहीं होती है बट बॉडी हेयर्स पे अप्लाई होती है. देन शैम्पू. शैम्पूज के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स है. तुमने सुना होगा पाउडर शैम्पू, लिक्विड शैम्पू, हम यूट्यूब शॉप्स में देखते रहते हैं. और शैम्पूज में भी लिक्विड क्रीम आता है जो हम नॉर्मली घर पे यूज करते हैं, सॉलिड क्रीम शैम्पूज भी आता है, एग शैम्पू और हर्बल ऑयल शैम्पू भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है. ड्राई पाउडर, प्रोटीन वाली एड देखिए, प्रोटीन किसमें ज्यादा रहता है? एग में. सो एग वाला शैम्पू. देन ड्राई पाउडर, पाउडर शैम्पू जो डायरेक्टली स्प्रिंकल करके भी यूज कर सकते हैं. एरोसोल. ओके, एरोसोल इज द स्प्रे काइंड ऑफ शैम्पूस. देन कंटेनिंग द आई कॉस्मेटिक. आई में जो आंखों में लगाने वाली चीजें, गर्ल्स कैन रिलेट मोर इजिली, बॉयज को रखना पड़ेगा. आई लाइनर्स, आई क्लर्क्स, देन आई काजल, सुरमा. सुरमा इज sort of kajal but it's in powder form, like जिसको पेन से अप्लाई नहीं किया जाता है. कॉन्टेक्ट लेंस, आईब्रो पेंसिल्स. ओके, दीज आर आई कॉस्मेटिक्स. डेंटल एंड ओरल कैविटी कॉस्मेटिक इंक्लूड्स टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, माउथ वॉश, टीथ व्हाइटनिंग, च्यूइंग गम एंड गम. सो मतलब ये सारी चीजें. टूथपेस्ट भी कॉस्मेटिक है विच वी यूज डेली, सो दिस इज ऑल्सो योर कॉस्मेटिक. टूथ पाउडर्स भी आते हैं, माउथ वॉश आते हैं जो तुमने सुना होगा, माउथ वॉश यूज किया जाता है माउथ फ्रेशनिंग के लिए. टीथ व्हाइटनिंग आते हैं, च्यूइंग गम्स और गम्स भी कॉस्मेटिक है. ओके, देन च्यूइंग गम कौन सी, जैसे कि तुमने हैप्पीडेंट की एड में देखा होगा, दांत व्हाइट हो जाते हैं, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ कॉस्मेटिक, हेल्प्स इन इंप्रूविंग द अपीयरेंस. देन एंटीपर्स्पिरेंट. एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओड्रेंट बेसिकली स्प्रेस को बोलते हैं. डिओड्रेंट स्प्रेस और एंटीपर्स्पिरेंट भी ऑर्डर को चेंज करने के, बॉडी ऑर्डर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है. एंटीपर्स्पिरेंट कैन बी लिक्विड, जो लिक्विड स्प्रे आते हैं, लोशंस भी आते हैं, स्टिक आती है, तुमने स्टिक देखा होगा, निविया स्टिक्स एंड ऑल. पाउडर्स आते हैं, देन डिओड्रेंट पाउडर, लिक्विड, क्रीम एंड स्टिक्स भी आती है. ओके, एंटीपर्स्पिरेंट इज डिफरेंट एंड डिओड्रेंट इज डिफरेंट. एंटीपर्स्पिरेंट स्वेटिंग कम करने के लिए यूज होता है. एंटी मतलब अपोजिट, पर्स्पिरेंट मतलब स्वेट, तो स्वेट कम करने के लिए यूज होता है एंटीपर्स्पिरेंट. एंड डिओड्रेंट खुशबू के लिए यूज होता है और बॉडी ऑर्डर चेंज करने के लिए यूज होता है, बॉडी स्मेल चेंज करने के लिए यूज होता है. ओके, तो एंटीपर्स्पिरेंट का मेन काम ये होता है कि वो स्वेटिंग नहीं होने देता, यूजुअली अंडर आर्म्स यूज करते हैं. देन मिसलेनियस कॉस्मेटिक्स जिसमें आता है और दूसरी चीजें
which is anti-stress mark, blackhead remover, and toilet soap. Now your soap which you use, toilet तो मतलब not खाली टॉयलेट का सोप, नॉर्मल जो हम सोप यूज करते हैं घर में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉयलेट सोप ओनली. तो सारे ही सोप्स मिसलेनियस कॉस्मेटिक्स के अंडर में आते हैं. ओके. This was all about the types of cosmetics in which we studied hair, facial cosmetics, hair cosmetics, eye cosmetic, dental and oral cavity, antiperspirant and deodorant, and miscellaneous cosmetics. Now we'll start with evolution of cosmeceuticals. मतलब कैसे cosmeceuticals वर्ल्ड में आया and how it evaluated. Earlier, what kind of cosmetics used to be there and अब कौन कौन से cosmetics है. So before 1938, cosmetics were not regulated as drugs. 1938 के पहले cosmetics और drugs में difference था. Cosmetics और drug अलग अलग चीजें थी. Cosmetics को drug and cosmetology में regulate नहीं किया जाता था. Could often be considered as way to sell dreams rather than objective efficiency. जैसे कि तुमने फेयर एंड लवली में देखा होगा. It's a dream to be fair. So it's a way. जिससे मतलब वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं. वो लोग एक ड्रीम सेल कर रहे हैं कि मुझे ये चीज अच्छी लगेगी. It will change my appearance. It will change my look. So it was rather considered as a way to sell dreams rather than the objective efficacy. FDA through Federal Food, Drug and Cosmetic Act regulated cosmetics that were required to be safe for consumers. Then FDA ने through the Federal Food, Drug and Cosmetic Act regulation उन्होंने रेगुलेट किया कॉस्मेटिक को कि उनको सेफ भी होना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए. नहीं तो पहले के टाइम पे लाइक आई नॉट से द ब्रांड नेम बट एक मोस्ट फेमस ब्रांड जिसका काम था फेयरनेस ऐड करने का. सो दे डू ऐड ब्लीच इन देयर क्रीम. सो जिससे ब्लीचिंग की वजह से देयर फेस टू लुक वाइटर ब्राइटर ब्राइटर बट डेली अप्लाई शुडंट बी अप्लाई डेली रोज रोज लगा के फेस डैमेज होता था. स्किन बर्न होती थी लोगों की होने लगी थी. एंड उसके बाद पता चला कि इसके अंदर ब्लीच की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. ये सेफ नहीं है रेगुलर यूज के लिए. जो स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, स्किन को डैमेज कर रही है. तो दिस कैन हैपन. So therefore, FDA, which is Food and Drug Association, इन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड दे रेगुलेटेड. उन्होंने चेंज किया रेगुलेशन कॉस्मेटिक को. दे रेगुलेटेड दैट कॉस्मेटिक शुड बी सेफर फॉर यूज for the consumers. With industrialization, many new ingredients from severe industries like oleo and petrochemical food etc. were used in preparation for cosmetics. बहुत सारे न्यू न्यू इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते थे कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन में, जैसे कि ओलियो एंड पेट्रोकेमिकल फूड एक्सेट्रा. सो बेसिकली ये सारी चीजें हार्मफुल है एंड इनके साथ फंक्शन है, अच्छे फंक्शन है कि स्किन को ब्राइट करेगी और मॉइस्चराइज करेगी, बट स्टिल इट हैव सम कैंसरस इफेक्ट ऑन स्किन. So US laws required ingredient classification. Then US laws पिक्चर में आए. उन्होंने चीजों को कंट्रोल में लेने के लिए दे केप दी इंग्रेडिएंट क्लासिफिकेशन. उन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया कि कौन से इंग्रेडिएंट हार्मफुल है एंड कौन से नॉन टॉक्सिक है. सो टॉक्सिक कांट बी यूज फॉर एनीथिंग, नॉट इवन इन ड्रग एंड नॉट इवन इन कॉस्मेटिक्स. एंड कौन से इंग्रेडिएंट कितने लेवल में यूज करने चाहिए. एवरीथिंग वाज क्लासिफाइड बाय यूएस देन. 1966 में ये चीज हुई. Then in 1991, Cosmetic Directive was amended for sixth time. Sixth time Cosmetic Directive change हुआ and prohibited the marketing of cosmetic products containing ingredients or combination of ingredients tested on animal as of 1998. मतलब in 1991 कॉस्मेटिक डायरेक्टिव फिर से चेंज हुआ सिक्स टाइम एंड देन उन्होंने मार्केटिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को या उनके इंग्रेडिएंट्स को या कॉम्बिनेशंस को एनिमल पे टेस्ट करना भी बैन कर दिया 1998 में. विद द सेवेंथ अमेंडमेंट ऑफ यूरोपियन कॉस्मेटिक डायरेक्टिव इन 2003 में सेवेंथ अमेंडमेंट आया. 1991 में सिक्स्थ अमेंडमेंट, 2003 में सेवेंथ अमेंडमेंट. A testing ban on finished cosmetic products was applied after 11 September 2004. मतलब according to the European Cosmetic Directive in 2003, फिनिश कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को भी बैन कर दिया गया एनिमल्स पे यूज करना. पहले इंग्रेडिएंट्स को यूज करके देखा जाता था, देन फिनिश कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को भी यूज करना करके देखा जाता था.
बट पहले इंग्रेडिएंट का बैन हुआ 6 अमेंडमेंट में, एंड 2003 में जब 7th अमेंडमेंट आया और निकला, उसके बाद 2004 में वो भी बैन कर दिया गया. मतलब यूजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक वाज आल्सो बैन. अल्टरनेटिव मेथड्स आए गए, डेवलप हुए, जैसे कि मशीन में टेस्टिंग होने लगी है और तो वो अल्टरनेटिव मेथड्स डेवलप हुए. मैक्सिमम डेडलाइन थी 2009, जहाँ पे सारे एनिमल्स को बैन कर दिया गया. 2009 तक डेडलाइन दी थी अमेंडमेंट में, यूरोपियन कॉस्मेटिक डायरेक्टिव में, कि 2009 तक इस डेडलाइन सारे ही चीजें बंद कर दो, एनिमल्स पे टेस्ट करना, एंड स्टार्ट टेस्टिंग विथ यूजिंग मशीन्स. Non-animal tests started. Currently, there is big changes in regulatory contexts are taking place and greatly impact the cosmetic market. Implementation of REACH, which is registration, evaluation, and authorization of chemicals, will also have implications by limiting the number of ingredients. Number of ingredients will limit किए गए available to cosmetic industry and creating high pressure on small and middle-sized enterprises. SMSC, SMEs. Number of ingredients available to cosmetic industry and creating high pressure on small and middle-sized enterprises (SMS). At later stage, we may expect setup of GHS, which is global harmonization system. हम आगे भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि GHS भी पिक्चर में आएगा, विच इज ग्लोबल हार्मोनाइजेशन सिस्टम, और कंप्लीटली सेफ हो जाएगा कॉस्मेटिक का यूज. रीच का इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया, जिससे लिमिटिंग मतलब जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसको लिमिट किया गया, केमिकल्स को यूज करना कम्प्लीटली बैन कर दिया गया कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में. एंड स्मॉल एंड मिडिल साइज एंटरप्राइजेस पे ये सारे, मतलब लार्ज एंटरप्राइजेस पे तो डाला ही गया था प्रेशर, बट ये टाइम स्मॉल एंड मिडिल साइज एंटरप्राइजेस पे भी प्रेशर डाला गया इस चीज के बारे में कि इंग्रेडिएंट्स का लिमिटेड यूज करो, सारे इंग्रेडिएंट्स यूज मत किया करो. Another topic that is clearly of interest today is replacement of animal testing by alternating method for testing safety of cosmetic ingredients. Currently जो topic newly trend में चल रही है is interest में है, which is replacing the animal testing. Animal testing को completely बंद कर दिया जाए, जो थोड़ी बहुत चीजों के लिए animal testing होती है वो बंद कर दी जाए, completely safety testing लाई जाए cosmetic ingredients की, okay, by using machine. The cosmetic industry by separate activities or via its association, the European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association has been extremely active in developing in vitro methods. सारी in vitro methods develop किए जा रहे हैं, especially European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association इस पे वर्क कर रहा है. एंड इन विट्रो मेथड्स मतलब लैब के मेथड्स ढूंढे जा रहे हैं जहां से ये सारी टेस्टिंग हो सके for confirming safety of ingredients. Even if much work has still to be done, बहुत सारा काम बाकी है, but great progress हुई है अभी तक. Finally, cosmetology has become a science based on combination of various expertise domains: chemistry, physics, biology, bioengineering, and dermatology. So basically, finally, cosmetology is a science which is based on combination of केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग एंड डर्मेटोलॉजी, ये सारी चीजों को स्टडी करके हम एक कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट बन सकते हैं. This is important. The definition of cosmetology, it can be asked. Cosmetics as costly drugs. Now this part is also important, very much important. कॉस्मेटिक्स और कॉस्टली ड्रग्स क्या होता है? कॉस्टली ड्रग्स तुम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, सो वी विल सी इन डिटेल कि व्हाट इज कॉस्टली ड्रग्स. कॉस्टली ड्रग्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर समवेयर इन बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. तो कॉस्टली ड्रग ऐसी चीज है जो कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स के बीच में आती है. प्रोडक्ट्स जिसका माइल्ड एक्शन है बॉडी के ऊपर, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक विथ माइल्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन. So products with mild action on human body, they are considered as cosmetics with mild pharmacological action. मतलब ऐसी चीजें जो कॉस्मेटिक भी है और उसका कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल भी एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल लिप बाम, जो tinted lip balm, so it is cosmetic, it's tinted, plus it has pharmacological action. So this is cosmetic as costly drug. Costly drugs are basically the primary categories of beauty products in South Korea.
कोरिया में तुम लोग कोरिया की कोरियंस की स्किन देखी होगी, बिकॉज उनके मेकअप में भी ड्रग्स आते हैं, उनके मेकअप में भी ड्रग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उनकी स्किन की केयर भी कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ दी उनको डैमेज नहीं कर रहा, अलॉन्ग विथ दी मेकअप दे आर कैरिंग, ठीक है। तो उसका मेन काम है कि प्रोटेक्ट भी करना स्किन को। South Korean Health Authority (HA) and the Ministry of Food and Drug Safety (MFDs) has categorized them under skincare products for acne, for skin dullness, etc. For acne also it can be used. मतलब you are applying a foundation, उसका मेन काम होगा तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना, एक्ने भी हील करना, along with it तुम्हें एक स्किन मतलब जो फाउंडेशन यू आर अप्लाइंग उसका फिनिशिंग भी देना। Classification of cosmetic with caustic drug is group 1, group 2 and group 3. Group 1 में ऐसे items आते हैं used for sanitary purpose like sanitary pads, tampons and menstrual pads, and textile used for manufacturing. Group 2 में includes odor inhibitory like toothpaste जिससे bad smell ना आए, जैसे कि toothpaste, antiperspirants जो sweating कम करे, and bath products, hair care products and external usage products. And group 3 are the products used for disease prevention and disinfectants. Okay, so group 1 में sanitary purpose, group 2 for odor inhibitors and group 3 disease prevention and disinfectants which prevents the disease. The purpose of coffee drug, prevention of nausea or another discomfort, foul breath or body odor. This is the purpose of the coffee drug. Prevention of prickly heat sores. Prickly heat sores इन सेंस बहुत ज़्यादा गर्मी में जो बॉडी के अंदर रैशेज एंड ऑल आते हैं, so उसको प्रिवेंट करना भी काम होता है कॉफी ड्रग का। प्रिवेंशन ऑफ हेयर लॉस टू प्रमोट हेयर ग्रोथ, हेयर पे भी यूज हो सकता है कॉफी ड्रग। इट ऑल्सो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ अलॉन्ग विद इट प्रिवेंट्स द हेयर लॉस, ओके, फॉर हेयर रिमूवल एंड ऑल्सो फॉर हेयर रिमूवल। एडिकेशन ऑफ रैट्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, फ्लीज एक्सेट्रा, मतलब ऐसी चीजें जो एनिमल्स को हार्म ना करे, ह्यूमंस को हार्म ना करे, बट अलॉन्ग विथ इट वो इंसेक्ट को भगाए घर से, ओके। जैसे कि वी यूज अगरबत्ती फॉर दैट जी फॉर मॉस्किटो एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट, बट वो हमें भी हार्म करते हैं, सो धुआं इज नॉट गुड फॉर अस, इवन गुड नाइट इज नॉट, उसका केमिकल इज नॉट, so at certain amount it's not good for us, so for humans. So therefore, those kind of products which are good for humans and also it can help to eradicate the rats, flies and mosquitoes. Example oxidative hair dyeing products of hair or hair waxing, hair weaving or straightening products, ditch fresheners, deodorants, talcum powder, anti-dandruff products to minimize the prevent the melanin spots, मतलब डार्क स्पॉट्स हटा सके, स्टिकल्स हटा सके, ये सारे प्रोडक्ट्स में मेकअप ऐड कर दिया गया है, सो डेली मेकअप के यूज के साथ ये सारी फायदे भी मिल सकती है, which is possible. Energy drinks containing taurine, some vitamins, precautions, bath preparations, hair tonics, white skin whitening, acne products, anti-dandruff shampoos, fluorinated toothpaste, these all are costly products. A pre-marketing approval, एनर्जी ड्रिंक का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन स्टफ, दे आर ड्रिंक फॉर एनर्जाइजिंग, ओके। तो जिसमें से कैफीन होता है, बट कैफीन के साथ अगर मैं एनर्जी ड्रिंक में टॉरिन भी डाल दूँ, सॉरी वाइटामिन से, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी रहता है। कैफीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो एनर्जी ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट इसके अंदर ही अगर मैं टॉरिन डाल दूँ तो इट विल बिकम अ पॉजिटिव प्लस पॉइंट फॉर मी। टॉरिन इज गुड फॉर हेल्थ, तो और थोड़े वाइटामिन डाल दूँ तो वैसे मैं अनहेल्थी चीज को थोड़ी हेल्थी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस इन कोरिया। A pre-marketing approval of all the COSI drugs is required by Pharmaceutical and Food Safety Bureau. तो COSI drugs को मार्केट करने से पहले दे नीड टू बी एक अप्रूवल चाहिए, विच इज फार्मास्यूटिकल एंड फूड सेफ्टी ब्यूरो का अप्रूवल of the MHLW applied according to Article 14 of the PAM. All the ingredients of coffee drugs must have a monograph in Japanese pharmacopoeia and comply with given criteria. तो जो भी कॉफी ड्रग्स है उसका एक मोनोग्राफ, फार्माकोपिया में मोनोग्राफ होता है, वी नो वेरी वेल, फर्स्ट ईयर हमें दिखता है फार्माकोपिया के जैसे भी जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उनके भी मोनोग्राफ होने जरूरी है जापानीज फार्माकोपिया में, और वो क्राइटेरिया में ही आनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होने चाहिए। Change of the product after approval are completed as an amendment to market authorization and can take from 2 weeks for very simple modification to more than 8 months for major changes. अगर कोई प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करना है अप्रूवल के बाद,
अमेंडमेंट के अब अमेंडमेंट लॉन्च हो गया, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट, सिक्स अमेंडमेंट हमने स्टडी किया, तो वैसे ही कोई अमेंडमेंट लॉन्च हो गया, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें 2 वीक से एकदम सिंपल मॉडिफिकेशन के लिए 2 वीक्स लग जाते हैं, और मेजर चेंजेस के लिए 8 मंथ्स जितना भी लग जाता है in the changes in the amendment. Okay, so this thing all we studied is purpose of procedures. Procedures का purpose क्या था, and कौन कौन से types of procedures होते हैं, how it can be used, then which association supports which kind of procedures, and the monographs we see, and हमने देखा कि changes कैसे हो सकते हैं. ये all about COSI drugs था. So write a short note आएगा. So what you have to mention is the definition of the COSI drugs, the classification. It's from South Korea that you have to mention, and the purpose of COSI drugs you have to mention. Not everything, but as much as you remember, mention it. Okay. Now requirements for labeling under pharmaceutical affairs law are, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है लेबल के ऊपर होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल अफेयर्स. ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो होनी चाहिए ऑन द लेबल अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल अफेयर्स लॉस. नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेड नेम, मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर एंड मैन्युफैक्चरिंग कोड, लिस्टिंग ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, वेट और वॉल्यूम ऑफ यूनिट ऑफ यूज, एक्सपायरेशन डेट, कैटेगरी नेम, warnings regarding use and handling, and description of container. This all should be there. The registration process for procedures, then ये है पूरा procedure का registration process. थोड़ा time लगता है registration में, 30 days. सबमिशन में टाइम लगता है, रिव्यू टोटल 30 डेज का टाइम लगता है कोई भी प्रोसीजर को रजिस्टर करने में. पहले सबमिशन होता है जहाँ पे डेटा सबमिट होता है to the HA for product approval. Then safety and efficacy evaluation होता है. Product will be submitted to cosmetic evaluation division CED को product submit किया जाता है. National Institute of Food and Drug Safety Evaluation NITS. And lastly for safety and efficacy evaluation it will be handed over to Medical Product Safety Division, Regional Food and Drug Safety. तो पहले चीजें सबमिट की जाती है, देन रिव्यू होता है. एचए एक बार एचए रिसीव करेगा हमारा प्रोडक्ट, देन वो रिव्यू करेगा, एफिकेसी इवोल्यूशन करेगा, देन स्पेसिफिकेशन रिव्यू करेगा इसमें जो चीज़ है एग्जैक्ट है कि नहीं, कितने भी इंग्रेडिएंट्स में है कि नहीं. Meanwhile, they will also inspect the manufacturing site. Manufacturing site भी वो लोग इंस्पेक्ट करेंगे जहाँ पे वो प्रोडक्ट बना है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना है वो वहाँ पे जाके भी देखेंगे कि वो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं, साइट इज अप्रोप्रिएट नहीं कि नहीं. ओके, दैट दे विल चेक. टू एक्सेस द कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसी है और प्रोडक्ट कंडीशन कैसी है, वो दोनों ही चीजें रिव्यू होगी. तो पहले सबमिशन होगा कॉस्मेटिक का, देन रिव्यू होगा, एंड देन अप्रूवल नोटिफिकेशन. एचए विल इशू अप्रूवल. एक बार अगर सारी चीजें रिव्यू हो गई एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, हाइजीनिक कंडीशन, तो अप्रूवल नोटिफिकेशन आएगा, अप्रूवल आएगा और नोटिफिकेशन आएगा, and HA will issue the approval and notification both if it qualifies in Korean pharmacopoeia. According to Korean pharmacopoeia, चीजें क्वालिफाई हो गई तो HA अप्रूव कर देगी. And other pharmaceutical company recognizes by NFTS. Cosmetics as OTC drugs. मुझे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए. I can directly buy the sunscreen because it can be added as OTC drug. Okay, OTC मतलब over the counter, जो डायरेक्टली हम मांग के ले सकते हैं without any prescription. Okay, there is no requirement for prescriptions in the OTC drugs. So OTC drugs are the medicines sold directly to patients without any prescriptions from healthcare professionals. There is no requirement of the prescriptions from doctors or any healthcare professionals. OTC drugs are usually API rather than the formulation. OTC drugs usually API होते हैं, formulation नहीं होता. जैसे कि पैरासीटामोल, it is API. पैरासीटामोल एक API है. Crostine, crostine contains paracetamol, but it contains pure paracetamol, correct? इसके अंदर pure paracetamol है, तो इसमें वो एक OTC drug है जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. Usually, not always. Cosmetic products can be considered as OTCs. Some products meet the definitions of both cosmetic and drug. Cosmetic product को मैं OTC over the counter product भी बोल सकती हूँ. कोई कोई प्रोडक्ट है जो कॉस्मेटिक एंड ड्रग दोनों की ही कंडीशंस पूरी करते हैं. फॉर एग्जांपल tinted sunscreen. So tinted is cosmetic and sunscreen is drug, because sunscreen comes under medicinal part.
So this is cosmetic as OTC. Okay. As Yeah. Then OTC products in compliance with OTC drug monograph may be marketed without prior FDA approval. OTC प्रोडक्ट को अगर मार्केट करना है जो OTC ड्रग मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग है तो उसमें FDA का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है. For example, in US, anti-dandruff shampoos and sunscreen products are considered to be OTC. US में anti-dandruff shampoos और जो sunscreen है उसको OTC कंसिडर किया जाता है. सनस्क्रीन और शैम्पूज लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती. बट ये दोनों ड्रग्स इसके अंदर ड्रग्स भी प्रेजेंट रहते हैं. So these are cosmetics as drugs. Okay. OTCs must be manufactured and controlled in accordance with the CGMP requirements for pharmaceutical for human consumption. CGMP हमने पहले पढ़ा है. So according to these requirements, इनका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और इसकी अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए. So this is cosmetic and OTC drug. इसका एडवांटेज क्या है? More benefits and fewer risks, obviously. तो इसके बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम हो जाएंगे. लो मिसयूज एंड अब्यूज पोटेंशियल. अगर मैंने चीजों को जो जो चीजें हार्मफुल नहीं है उसको ही मैंने ओटीसी रखा है, हार्मफुल चीजों को ओटीसी नहीं रखा, तो इससे एक फायदा होगा कि मिसयूज और अब्यूज नहीं होगा. कोई भी कभी भी कोई चीज चाहते लेके उसको मिसयूज नहीं कर सकता है. until and unless my doctors write it for me, I can't buy it. Okay. Consumers are able to self diagnose, self treat, self manage. अगर चीज ओटीसी है, मुझे पता है कि मुझे बुखार है, तो मैं मेडिकल में जाके केमिस्ट में जाके दवाई ले सकती हूँ डायरेक्टली. सो आई कैन सेल्फ डायग्नोस, सेल्फ ट्रीट एंड सेल्फ मैनेज. मुझे पता है मुझे बुखार है तो मैं खुद को डायग्नोस कर सकती हूँ, खुद को ट्रीट भी कर सकती हूँ, मैनेज भी कर सकती हूँ. एडिक्वेटली लेबल, चीजें एडिक्वेटली लेबल की जाती है. दिस इज द एडवांटेज. हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आर नॉट नीडेड, सो देयर इज नो नीड टू गो टू डॉक्टर. में डॉक्टर के 100 रुपये अलग से दो, मेडिसिन के 100 रुपये अलग से दो, so there is no requirement for that. Okay. Now the disadvantages. इससे क्या डिसएडवांटेज है? रिड्यूस अपॉर्चुनिटी टू रिसीव काउंसलिंग अबाउट पॉसिबल लाइफस्टाइल थेरेपीज. अगर मैं एक सनस्क्रीन के लिए डॉक्टर के पास आ रही हूँ तो डॉक्टर मुझे गाइड भी करेगा कि तुम्हारी स्किन टाइप ये है, मुझे काउंसलिंग देगा. व्हाट्स योर स्किन टाइप, इज इट ऑयली, इज इट ड्राई, देन व्हाट काइंड ऑफ सनस्क्रीन सूट्स टू यू, इज योर स्किन एक्ने प्रोन और नॉट. बट डॉक्टर विल आस्क मी एंड अकॉर्डिंगली ही विल प्रिस्क्राइब मी द सनस्क्रीन. और अगर मैं डायरेक्टली मेडिकल में जाकर सनस्क्रीन ले लीजिए, मुझे चाहिए ब्रांड की, so it will not give me proper counseling. मुझे काउंसलिंग नहीं मिलेगी प्रॉपर. Poor compliance. So compliance will be poor. प्रॉपर कंप्लायंस नहीं होगी. पेशेंट ने आज ये ली, कल दूसरी सनस्क्रीन ली, परसों दूसरी ब्रांड की ली, तो क्या हैपन, एक महीना मैंने ये ट्राई किया, ये नहीं जमा, दूसरा ट्राई करते हैं. तो इससे द कस्टमर विल नॉट स्टिक टू अ सिंगल ब्रांड. Misdiagnosed patients won't be benefited from drug but will be exposed to its risk. जो पेशेंट्स मिसडायग्नोस्ड है, मतलब प्रॉपरली डायग्नोस नहीं है, उनको कोई बेनिफिट्स तो नहीं होगा ड्रग से, बट उल्टा रिस्क मिलेगा उनको. जैसे कि मुझे इफ माई आई एम फेसिंग स्किन सेंसिटिविटी और मैं सनस्क्रीन लगा रही, टैनिंग हो रही है, मैं सनस्क्रीन लगा रही, but probably that's not the tanning, that may be different thing, that's due to high melanin level inside my skin or something like that. तो डायग्नोसिस में प्रॉपर करने पाओगे, मैं बस सनस्क्रीन लगाती जाओगी. दिस में हैपन. मोर डिफिकल्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द ड्रग. ड्रग का इफेक्ट भी स्टडी नहीं कर पाते प्रॉपरली. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्मेटिक एंड OTC ड्रग. तो ये चैप्टर में व्हाट वी डिड ओवरऑल इज we started with unit 1.1 cosmetic as cosmeceutical product, in which we have started with the definition of cosmetics, definition as per EU regulation. Then the manufacturers distinguish cosmetic as decorative and core cosmetic. Then what we did is the types of cosmetics, जिन्हें हमने different types देखे. Evolution of cosmetics, हमने देखा कि cosmetic कैसे evolve हुआ. 1938 के पहले क्या सीन था, then क्या क्या चीजें amendments आए, कौन से amendments आए, कैसे slowly टॉक्सिक चीजें बंद कर दी, बैन कर दी गई, कैसे एनिमल्स पे टेस्टिंग बैन कर दिए गए, कौन से टाइम पे कौन से डेट पे चीजें बैन हुई. देन कॉस्टली ड्रग क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टली ड्रग्स. देन हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू दी लॉज, क्या क्या लेबल होना चाहिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर कॉस्टली ड्रग का रजिस्ट्रेशन टोटल 30 दिन में होता है, उसका सबमिशन होता है, देन रिव्यू होता है, देन अप्रूवल होता है. देन कॉस्मेटिक ओटीसी ड्रग में हमने देखा ओटीसी ड्रग्स क्या होते हैं, कॉस्मेटिक कैसे ओटीसी ड्रग में आते हैं, कौन से कॉस्मेटिक ओटीसी ड्रग्स में आते हैं.
इसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। ओवरऑल वी स्टडीड ऑल अबाउट द कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स, ठीक है। So thank you so much guys for watching my video. Hope that you liked it. I hope कि तुम्हें सब समझा होगा, और कुछ भी तुम्हें डाउट हो, you can ask me in comments. I will be actively replying to you. And for more such notes, please do support me. Please do motivate me. और ऐसे ही अच्छे वीडियोस अच्छे आते रहेंगे, ऐसे ही नोट्स हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिलते रहेंगे. So please do support me. Thank you.